اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھے یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کرو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے میں اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا تھا۔ البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھی بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخرکار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر نے اس سے کہا، دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تورات میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دوگنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا، بلکہ آپ کو معمولی خراش بھی نہ آئی۔ حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے، پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر اپنا فضل فرمایا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا، اور خریدنے والے عزیز مصر تھے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کو ابھی آپ کے اور امتحان مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سنور کر آپ کے سامنے آنے لگی۔
آپ کو लुभाने की कोशिश करने लगी। एक दिन आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कहने लगी, तुम्हारे बाल किस कदर खूबसूरत है। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत के बाद ये मेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे। अब उसने कहा, तुम्हारी आंखें किस कदर हंसी हैं। आपने फरमाया, मौत के बाद ये पानी होकर मेरे चेहरे पर बह जाएंगी। अब जुलेखा ने कहा, तुम्हारा चेहरा कितना हंसी है। आपने फरमाया, ये सब मिट्टी की ग़िज़ा है। इन जवाबात से साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने आप पर आखिरत की फ़िक्र को उस कदर मुसल्लत कर दिया था कि सारी लज्जतें उनके सामने बेहकीकत होकर रह गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, इसलिए जुलेखा के मकर फ़रेब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई। एक दिन जुलेखा ने इंतहा कर दी, दरवाज़ों को ताले लगा दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी, लो आ जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की पनाह, वो तेरा शौहर मेरा आका है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। बिलाशुबा एहसान फरामोश कभी फला नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये था कि मैं उस शख्स के एहसानात का बदला भला इस तरह कैसे दे सकता हूँ। इस मौका पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने यूसुफ को ऐसे निशानात दिखाए कि जिनको देखकर यूसुफ गुनाह से महफूज रहे। इस बात की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल आपके सामने कर दी। वो आपको अपनी उंगली दांतों में दबाए खबरदार कर रहे थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अजीज़े मिस्र की सूरत सामने कर दी थी। इस सिलसिले में और भी कई कौल है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके शर से बचने के लिए भाग खड़े हुए। उलमा ने लिखा है कि जुलेखा ने 7 दरवाज़ों पर ताले लगाए थे। उसके बाद जो कमरा आता था उसमें उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया था। अब जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे तो जुलेखा पीछे भागी। आप जो ही पहले दरवाजे के पास पहुँचे, उस पर लगा हुआ ताला खुद ब खुद खुल गया। आप दरवाज़ा अबूर करके दूसरे कमरे में आ गए। जुलेखा बदस्तूर पीछा कर रही थी। आप दूसरे दरवाजे पर आए, उसका भी ताला खुद ब खुद खुल गया। इस तरह ताले खुलते चले गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी कमरे में पहुँचे तो जुलेखा ने लपक कर आपका कुर्ता पकड़ लिया। आपने झटका मारा तो कुर्ता फट गया। आप जो ही दरवाजे पर पहुँचे, आखिरी ताला भी खुल गया। अब जो आप बाहर निकले तो अजीज़ मिस्र को दरवाजे पर पाया। इधर जुलेखा बाहर निकली। उसने जो अपने शौहर को देखा तो बदहवास हो गई और बोल पड़ी, आपकी बीवी के साथ जो बुरे काम का इरादा करे, उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसे जेल में डाल दिया जाए। वहाँ उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि वो इस सज़ा को हमेशा याद रखे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये औरत उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने फरमाया, अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यही मुझे फुसला रही थी। आपके इस जवाब के अलावा अल्लाह ताला ने आपकी सफाई एक और तरीके से साबित की। उस वक्त वहाँ एक दूध पीता बच्चा मौजूद था। वो बोल पड़ा, ये सब तेरी बीवी की शरारत है। अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। शेरख्वार बच्चे की ये बात सुनकर अजीज़े मिस्र ने आपका कुर्ता देखा। वो पीछे से फटा हुआ था। ये देखकर उसने बीवी से कहा, ये तुम औरतों की फरेबकारी है, बेशक तुम्हारा मकर बहुत खौफनाक है। फिर उसने आपसे कहा, ए यूसुफ, तो इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दे। साथ ही उसने अपनी बीवी से कहा, ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू सरासर खताकार है। अब ये हुआ कि ये वाक़या छुपा ना रहा। अजीज़े मिस्र की बदनामी होने लगी। बड़े बड़े घरानों की औरतों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। वो कहने लगी, देखो उस औरत पर क्या भूत सवार हुआ, अपने ज़र खरीद गुलाम से मुंह काला करना चाहती थी। ये बातें जुलेखा तक भी पहुंच गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उन सब औरतों की अपने घर दावत की। जब सब औरतें आ गई तो उसने दस्तरखान बिछा दिया
उस पर फल रखे, साथ में छुरियां रख दी जिन से फल काटे जा सके। जब सब ने अपने अपने हाथों में फल काटने के लिए छुरियां पकड़ ली तो उसने एकदम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर बुलवा लिया। जो ही उन औरतों की नज़रें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, उन सब की नज़रें उनके चेहरे पर जमकर रह गई और उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई छुरियों से फलों की बजाय अपने हाथ काट डाले। यानी उन्हें होश ही नहीं रहा कि फल काट रही है या उंगलियां काट रही है, और साथ में पुकार उठी, अल्लाह की कसम, ये आदमी नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। जब उन औरतों की ये हालत हो गई तो जुलेखा ने उनसे कहा, यही तो वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती हो, मगर ये जालिम उस कदर सख्त दिल है कि मेरे काबू में नहीं आया। फिर उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, कोई बात नहीं यूसुफ, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं भी तुझे जेल भिजवा कर रहूँगी। इस वाक़े के बारे में बातें जब ज़्यादा ही फैल गई तो अजीज़ मिस्र ने सोचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए जेल भिजवा देना ही बेहतर होगा ताकि मामला सरद पड़ जाए। उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हालात इस कदर ख़राब देखे तो अल्लाह ताला से यूं दुआ की, ए मेरे रब, मुझे कैद पसंद है इस बात की निस्बत जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती है। अगर तू मुझे उसके फरेब से नहीं बचाएगा तो मैं बेअक्ल हो जाऊंगा। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यूसुफ के रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, फिर उनसे उसका फरेब दूर कर दिया। बेशक वो सुनने वाला खबरदार है। यहाँ जहनों में सवाल पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की दुआ क्यों की। उसका जवाब ये है कि पहले वाक़े के बाद जुलेखा अपने इरादे से बाज नहीं आई थी। उसके अंदर ख्वाहिश की आग और भड़क उठी थी। अब वो और ज़्यादा ऊंचे हथकंडे इख्तियार करने लगी थी और आपको धमकियाँ देने लगी थी कि वो आपको जेल भिजवा देगी। वो कहती थी, या मेरी बात मानो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बुनियाद पर आपने दूसरी बात को तरजीह दी और दुआ की, या अल्लाह, मैं इस शैतानी और हराम काम के मुकाबले में कैद खाने को बेहतर समझता हूँ। कैद की सख्तियाँ मंजूर है, तेरी नाफरमानी मंजूर नहीं। इधर अजीज़ मिस्र अपनी बीवी की इन बेहुदा हरकत की वजह से बदनाम हो रहा था। तंग आकर उसने भी यही फैसला किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दे। अगरचे वो अच्छी तरह जानता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह है और उसने आपको जेल भिजवा दिया, ताहम उसने जेलर को हिदायत की कि आपको कैदी ना समझे। उसने किसी मसलहत के तहत आपको जेल भिजवाया है। इन्हें आराम से रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इस्लामिक वॉइस ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।